Assalamu alaikum students. Today we will start from chapter number 3, section number 2, question number 8. How are forests useful for humans? In its answer, we will describe the uses of forest. Now open page number 47. The answer of question number 8 starts from this line. Forests are home to a wide variety of animal and plant life. Forests provide home to a large number of animals and plants. Forests provide wood which is used for construction and furniture. Forests provide wood which is used for construction and furniture, and pulp for making paper products. What is pulp? Pulp is a wood based renewable raw material which is used for making paper products. Lumbering is an important economic activity. What is lumbering? Lumbering means cutting down trees and turning them into pieces of wood which can be used for economic purposes. Then you will add these points in the answer of question number 8. Forests keep the climate moderate. Forests keep the climate temperate. फॉरेस्ट क्या करते हैं? टेम्परेचर को ना तो बहुत ज़्यादा हाई होने देते हैं, ना बहुत ज़्यादा लो होने देते हैं, टेम्परेचर को दरमियाना रखते हैं. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर and fuel wood. Forests provide timber. What is timber? A wood which is used in building. Fuel wood, use wood as a fuel. Wood fuel is used for heating, cooking and for fueling steam engines. Let's see question number 9. What is an ecosystem? In its answer, I will tell you about ecosystem. The answer of question number 9 starts from this line. A relationship between physical environment and human beings is called the ecosystem. Relationship between physical environment and human beings is called the ecosystem. What is physical environment? Physical environment includes land, air, water, plants and animals, and all of the natural resources that provide us basic needs. In simple words, what is ecosystem? An interaction between living organisms and non-living surroundings in a community is called ecosystem. Let's see question number 10. What are the threats to the ecosystem? In its answer, we will describe about the threats to the ecosystem. Now open page number 47. The answer of question number 10 starts from this line. The ecosystem is very delicate. Delicate means nazuk. And the activities of human beings are a serious danger to it. The ecosystem is very delicate and human activities are a serious danger to it. Which kind of human activities are dangerous for the ecosystem? The careless felling of trees has made forests disappear in many parts of the world. केयरलेस कटिंग ऑफ ट्रीज़ का क्या रिजल्ट निकला है कि दुनिया के बहुत से हिस्सों से फॉरेस्ट डिसअपियर हुए हैं, ख़त्म हुए हैं. फॉरेस्ट डिसअपियरेंस की एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल इज़ द डिसअपियरेंस ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन वेस्ट अफ्रीका एंड ब्राज़ील. वेस्ट अफ्रीका और ब्राज़ील में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एरियाज. एज अ रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड. केयरलेस कटिंग ऑफ ट्रीज़ की वजह से क्या हुआ है? इम्पॉर्टेंट प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय हुए हैं, तबाह हुए हैं. एंड मैनी एनिमल्स विच लिव्ड इन दिस फॉरेस्ट हैव आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट मीन कम टू एन एंड. और बहुत से जानवर जो इन जंगलात में रहते थे वो भी एक्सटिंक्ट हुए हैं, ख़त्म हुए हैं. बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो अपनी खुराक के लिए सिर्फ पौधों पे डिपेंड करते हैं. अब जब पौधे डिस्ट्रॉय हुए हैं तो जानवरों को खुराक ही नहीं मिलेगी, तो फिर जानवर भी क्या होंगे? एक्सटिंक्ट होंगे. एंड द एटमोसफेयर हैज़ आल्सो बीन इफेक्टेड. और इस सब की वजह से एटमॉस्फेयर भी इफ़ेक्ट हुआ है. देखिए हर एक चीज़ यहाँ पे एक दूसरे से लिंक कर रही है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से फॉरेस्ट डिसअपियर हुए, इंपॉर्टेंट प्लांट्स डिस्ट्रॉय हुए. अब जब इंपॉर्टेंट प्लांट डिस्ट्रॉय हुए तो उसका इफेक्ट एनिमल्स पे भी हुआ, एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए, और फिर इस सब का इफेक्ट जाके एटमॉस्फेयर पे हुआ कि एटमॉस्फेयर इफेक्ट हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें मिल के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं. जब ये सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी तो इसका इफेक्ट इकोसिस्टम पे भी होगा. In Pakistan, careless cutting down of trees on the northern mountains has resulted in soil erosion, flooding during the rainy season and loss of animal habitats. पाकिस्तान में नॉर्दर्न माउंटेन्स में केयरलेस कटिंग ऑफ ट्रीज़ का क्या रिजल्ट निकला है? सॉइल इरोजन. व्हाट इज सॉइल इरोजन? द प्रोसेस व्हेन सॉइल इज वॉश्ड and become unsuitable for plant growth.
कि जब मिट्टी कटाव का शिकार होती है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं रहती। दरख्तों की जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को मजबूती देती हैं और वो कटाव का शिकार नहीं होती। लेकिन जब दरख्त ही नहीं होंगे तो मिट्टी क्या होगी, कमज़ोर होगी और कटाव का शिकार होगी। कटाव का शिकार कब होती है, बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से या फिर बहुत तेज़ हवाओं की वजह से। फ्लडिंग ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, रेनी सीज़न के दौरान फ्लड का आना मतलब सैलाब का आना। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ का एक रिज़ल्ट क्या निकला है, फ्लड, सैलाब आते हैं। किस वजह से सैलाब आएंगे, आपने अक्सर देखा होगा दरियाओं के करीब, नहरों के करीब दरख्त लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। इस वजह से लगाए जाते हैं कि एक तो वहाँ पे मिट्टी को मजबूती देते हैं और दूसरे इस वजह से भी लगाए जाते हैं कि जब पानी का बहाव ज़्यादा हो तो पानी किनारों से ज़्यादा बाहर ना निकले। दरख्त क्या करते हैं, पानी के बहाव में रुकावट डालते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, अगर दरख्तों को ही काटने लग जाएंगे, दरख्त ही वहाँ से काट देंगे, तो जब बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, पानी का बहाव तेज़ होगा, पानी किनारों से बाहर निकलेगा और फ्लड आएगा। फ्लड की वजह से मज़ीद फिर नुकसान होगा, इंसानों को भी, जानवरों को भी, पौधों को भी। एंड लॉस ऑफ एनिमल हैबिटेट्स, दरख्तों के काटने का एक रिज़ल्ट क्या निकला है, एनिमल का हैबिटेट भी डिस्टर्ब हुआ है। एनिमल्स रहते कहाँ पे हैं, जंगलात में रहते हैं। जब जंगलात से ही दरख्तों को काटने लग जाएंगे तो जानवरों की जो रहने की जगह है उसको नुकसान होगा। कटिंग डाउन फॉरेस्ट चेंज द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया एंड मेक्स इट ड्राई, फॉरेस्ट की कटिंग की वजह से क्लाइमेट भी इफेक्ट हुआ है। क्या हुआ है, क्लाइमेट ड्राई हुआ है, खुश्क हुआ है। देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ डिस्टर्ब हो रही है, लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी। पौधे भी इफेक्ट हो रहे हैं, जानवर भी इफेक्ट हो रहे हैं, इंसान भी इफेक्ट हो रहे हैं, इन्वायरमेंट भी इफेक्ट हो रहा है। जब ये सब चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं तो इन सब की वजह से फिर इकोसिस्टम भी इफेक्ट होता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द फॉलोइंग sentences. When dash condenses, we see it as fog, water vapor. Rainwater that seeps into the ground is stored as fresh underground water. The main kinds of forest are coniferous, deciduous, tropical, and equatorial. The relationship between people and the physical environment is called ecosystem. All living things are dependent on each other. I hope you will be understand. Allah Hafiz.